نے عوامی لیگ کو ووٹ دیا، ہم نے عوامی لیگ کو ہی فارغ کر دیا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جب تک نہیں رکے گا، آگے نہیں چلے آپ ایسے. اچھا، یہ جو آپ نے بریک لگائی آپ کو نہیں پتا کہ بریک انہوں نے بالکل صحیح بریک لگائی ہے، کیونکہ پورے کا پورا فیض میلہ بھی چلانا ہے ہم نے. تو یہاں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا اس ہال کے حوالے سے، اور اسی میں سوال ہوگا بدر صاحب کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ پہلا جو فیض میلہ ہے 1986 میں ہوا تھا، اور یہی مہینہ تھا فروری کا. اور سہیل رائے صاحب تشریف لے آئے. سہیل صاحب تو میں جناب ایک وہ واقعہ جو ہے اس واقعے کے حوالے سے سوال رکھنے لگا ہوں بدر صاحب کے ساتھ. تو وہ یہ تھا جی کہ جب 1986 میں فیض میلہ ہوا تو اس میں اقبال بانو صاحبہ نے اس سٹیج سے انہوں نے فیض صاحب کی ایک نظم گانی شروع کی. ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. پورا ہال تالیاں بجا رہا نہیں، صرف تالیاں نہیں بجا رہا تھا. چلا. وہ ادھر منو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے وہاں سے چھلانگ لگائی، ادھر آ کے وہ انہوں نے رقص شروع کر دیا. ادھر جاوید شہید صاحب تھے، پیچھے سے بابا ظہیر کشمیری نیچے آیا. میں وہ کہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. تو میں دیکھ رہا تھا یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ دانشور انہوں نے ناچنا شروع کر دیا ہے. اور جب وہ اقبال بانو نے کہا جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، تو پھر وہ نعرے لگنے شروع ہو گئے. اور اس وقت آپ کو پتا کس کی حکومت تھی؟ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، مارشل لا کا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بریک لگائی، 1986 اور 2026 حالات کچھ بدل گئے ہیں یا ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ تو بریک فیل ہو گئے. اس میں اس وقت میر صاحب ہم لوگ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے. اس کے اگلے دن ہم سے گستاخی ہوئی. میں تو اسے گستاخی خیر نہیں کہتا، لیکن کیونکہ بہت بڑے ہمارے ادیب و شاعر تھے، لیکن اس گانے نے اور اس پوری فضا نے ایک بڑی موٹیویشن دی تھی. تو دوسرے دن مشاعرہ تھا. مشاعرے میں احمد ندیم قاسمی صاحب بھی تھے. نہیں، وہ 1987 کی بات ہے. وہ اوپن ایئر تھیٹر تھا باغ جناب. یہ 1986 کی بات ہے. اس میں یہ ہوا کہ ہم نے ان کے خلاف ہم نے کہا ہم ان کو نہیں پڑھنے دیں گے. تو بہت غیر منتظرین نے غصے کا اظہار کیا. ہم نے کہا یہ اہل قلم کانفرنس سے ہو کر آئے ہیں جو جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی، اور جس کے بارے میں فراز صاحب نے پھر محاصرہ پوری ایک نظم لکھی تھی اس حوالے سے. تو منو بھائی نے اگلے دن جنگ میں ہمارے خلاف ایک کالم لکھا. تو بعد میں نے منو بھائی کو، انہوں نے لکھا کہ فیض صاحب کی روح تڑپ رہی ہوگی. میں نے کہا منو بھائی آپ کا بہت احترام ہے، لیکن فیض صاحب کی روح اس عمل سے جو ہے وہ ہو رہی ہوگی کہ ایک اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شاعر وہ کیسے چلا گیا اہل قلم کانفرنس میں جو جنرل ضیاء الحق نے بلائی تھی. تو ان کی وہاں پریزنس اس لیے ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو عجیب سی لگ رہی تھی، ناگوار گزر رہی تھی. تو اصل چیز یہ کہ کمٹمنٹ اور کنوکشن جو ہوتی ہے وہ دربار سے باہر ہی اچھی لگتی ہے. جی اچھا، جب آپ دربار میں چلے گئے تو پھر آپ کمیٹڈ نہیں رہ پاتے. جی سہیل رائے صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. آپ سے ذرا سوال مختلف سا کرنے کو دل چاہتا ہے. وہ جو فیض صاحب نے لکھا اور نور جہان صاحبہ نے گایا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تو آپ کی جو ذاتی زندگی میں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، آپ کو کیا لگتا ہے فیض صاحب نے یہ کیوں لکھا؟ دیکھیے، فیض صاحب تو پاکستان میں لکھنے والوں کے آئیڈیل ہیں. ہاں، کیونکہ پاکستان جیسا پہلے تھا آج بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے. جیسا اس وقت لکھنا مشکل تھا آج بھی آسان نہیں ہے. کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. مشکل بھی زیادہ ہے اور رکاوٹیں بھی اور زیادہ ہیں. لیکن
फैज साहब ने उसमें भी अपना पैगाम पहुंचाया और इस कदर दिलकशी से, इस कदर खूबसूरत अल्फाज से कि वो आज भी आपके दिलों को दबाता है। तो सवाल ये है कि मोहब्बत भी करनी है, इस जमाने में भी रहना है, लड़ना भी है, मज़ाहमत भी करनी है। तो फैज साहब हमें यही सिखा के गए हैं कि ये सारे अमल आपने साथ साथ जारी रखना। ना उन्होंने शायरी छोड़ के सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हुए, ना उन्होंने जो है वो एडिटरी छोड़ी, पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर भी रहे, सहाफत भी छोड़ी, सहाफत भी कभी नहीं छोड़ी। तो इसी आखिर में वो PLO के जो मैगजीन था उसके एडिटर था, लोटस के। तो वो सारी जिंदगी एक स्ट्रगल, एक कोशिश चीजों को बदलने की, जमाने को बदलने की, हालात को बदलने की। हमारा काम तारीख में सिर्फ इतना है, जरूरी नहीं हम तारीख को बदल लें, जरूरी नहीं हम हालात को बदल लें। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इस तारीख के जो मुसाफिर हैं हम सब, कि हम अपनी जद्दोजहद करें। चाहे तारीख में हमारा जिक्र एक नुक्ते से भी कम हो या फैज साहब जितना बहुत ज्यादा हो, तब भी शर्त बुनियादी यही है कि आप ये कोशिश करते रहें। अच्छा, ये जो कारवाने दर्द है जिसकी मंजिल अभी तक हम तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है उसका मौजूद है कारवाने दर्द की मंजिल। इस कारवाने दर्द में आप अपने आप को भी शामिल समझते हैं? मैं समझता हूं कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के बारे में और अपने वतन के बारे में दर्द रखता है और इसको कोशिश कर रहा है किसी न किसी से संवारने की, और खासकर 1973 के बाद से ये तय हो गया है कि ये दर्द कौन सा होना चाहिए, आईने पाकिस्तान को फॉलो करना। तो इसलिए आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखने वाले एक ही हैं, और जब तक वो जद्दोजहद जारी रहेगी दर्द दिल भी जिंदा रहेगी। अच्छा मदर साहब, फैज साहब ने कहा था बोल के लब आजाद हैं तेरे, तो आपके लब आजाद हैं? ये आपकी तालियों से जवाब आ गया, कुछ उनको भी बोल के बताने थे कि कितने आजाद है वो। मैंने भी साहब सहाफत के बहुत से अदवार देखे हैं, गैर हम तीनों ने ही देखे हैं। मेरा नुक्ता नजर हो सकता है आपके नुक्ता नजर से आप ताकत रखता हो या हो, मैंने इससे ज्यादा सहाफत का बदतरीन दौर नहीं देखा। हमारे साथियों ने कोड़े भी खाए, जेल भी गए, फौजी अदालतें भी भुगती और जद्दोजहद भी की, और आज से नहीं 1950 से आज तक जद्दोजहद में ही हैं हम। वो भी एक कारवाने दर्दी है हमारा। पहले मुझे पता होता था कि कोई हमारे साथी को गिरफ्तार करके ले गया है, अब वो लापता होता है। पहले मुझे ये पता होता था कि हाँ ये खबर, ये एडवाइस है, ये खबर प्रेस एडवाइस आती थी। सेंसरशिप का भी जमाना हमने देखा जब अखबारात से खबरें निकाल दी जाती थी, लेकिन लोगों के शऊर पे मैंने हमेशा इस चीज को कंटेस्ट किया। पाकिस्तान के लोगों में जितना सियासी शऊर मैंने देखा है, इससे पहले नहीं देखा। ये तालियों से समझ आ गई। और ये नहीं कोई आज की बात नहीं है। लोगों ने हमेशा वोट का इस्तेमाल किया, वोट के जरिए तब्दीली लाने की कोशिश की, और जब भी वोट के जरिए तब्दीली लाई गई, उस तब्दीली को उन लोगों ने रोंदा जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और मैंने सवाल किया एक साहब से, मैंने कहा कि
टिकर भी कहने से चलता है और कहने से निकल जाता है। अब तो बीपर भी, जरा सा बीपर में कोई पॉज आ जाए तो वो बीपर रोक दिया जाता है। अब तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन ना दे, डिसइंफॉर्मेशन दे, दूसरे मामले। और मैंने हमेशा ये समझाने की कोशिश की और इस प्लेटफॉर्म से भी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप इंफॉर्मेशन को किल करेंगे, इट विल ऑलवेज लीड टू डिसइंफॉर्मेशन। लोगों को जानने का हक इस मुल्क का आइन देता है, आर्टिकल 19A देता है। मुझे आर्टिकल 19 में फंसा दिया गया कि जी कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है। उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मेरे नुक्ता नजर से फैसला करना सिर्फ एडिटर का काम होना चाहिए, किसी रियासत का काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं ये बात कर रहा हूं और हम सब ने देखा ना अभी हाल ही में जब पाक भारत जंग हुई, क्या पाकिस्तान के किसी मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? किसी ने हमसे नहीं कहा क्या करना है, हमें पता था क्या करना है। हमें पता है आज भी कि कौमी सलामती हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। लेकिन इन चीजों का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अगर लोगों ने किसी को वोट दिया है, चाहे मैं उससे सियासी इख्तिलाफ जितना भी कहूं, उस वोट को रिस्पेक्ट दें। और यही इस कारवाने दर्द का सबसे बड़ा दर्द है कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अच्छा सुहेल साहब, ये जो मदर साहब ने बात की कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी सहाफती जिंदगी में इतना बुरा वक्त सहाफत के लिए नहीं देखा, लेकिन जो लोग इनसे इत्तेफाक नहीं करते, आपको पता है बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते हैं जी देखें आप टीवी पे आते हैं, रोज बोलते हैं, अदालतें काम कर रही हैं, सियासी जमातें काम कर रही हैं, एक पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें गवर्नमेंट भी है, ऑपोजिशन भी है, तो ये जो आप बातें करते हैं जी बड़ी पाबंदियां हैं, ये है वो, तो हम आपको मादर पितर आजादी दे दें, ये भी तो एक आर्गूमेंट है, उसका क्या जवाब है? देखिए, गुजारिश ये है कि हम सब पहले तो ये तय कर लें कि हम सब किस ज़ाब्ते के तहत चलेंगे। अगर तो आपने हर मुल्क को चलाने के लिए आइन बनता है और फिर सबको उस आइन पर अमल करना पड़ता है, और तो कोई तरीका है नहीं। अब उस आइन के तहत हम सब लोग ट्रेंड हैं, हमें अपनी आज़ादियों का, अपनी उसी तरह रुकावटों का, पाबंदियों का इल्म है, और उस पर हम सब लोग जो तजर्बा हासिल करते हैं उस पर हमें एक्सपर्टाइज होता है। हमारा जो एडिटर होता है या जो हम उसके ऊपर पॉलिसियां बनाते हैं बैठकर, उसके पीछे 30 साल की, 40 साल का तजर्बा होता है। लेकिन वो अब ये गया है कि वो तजर्बा, वो महारत, वो जो हमारा अपना कंट्रोल था अदालती, उस पर भरोसा नहीं किया जाता। और एक सुपर कंट्रोल जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना जिसकी कोई समझ है, वो एक अहमकाना नुक्ता नजर है जो कि पेश किया जाता है। और ये नहीं सोचा जाता कि जब आप ये पाबंदी लगाते हैं तो सबसे बड़ा उसका नुकसान ये होता है कि उस अदारे की साथ, लिखने वाले की साथ तबाह होती है, और उसके मुकाबले में जिन पर आप पाबंदी लगा ही सकते हैं, जो बैरून मुल्क बैठे हैं, BBC है, यूट्यूबर है, दूसरे हैं, उनके बारे में तस्वर पैदा होता है कि वो आजाद है, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे। यानी जो पाकिस्तान के बारे में जिन लोगों को तजर्बा है, जिन्होंने सालों के बाद अपने अपने मकाम पे पहुंचे हैं, उनकी साख तबाह करने पर तुले हुए हैं, और जिनकी कोई साख है नहीं उनकी साख बनाने पर तुले हुए हैं। इसको सुपर कंट्रोल कहा जा रहा है। आप मुझे बताएं कि कितनी नाइंसाफी है पाकिस्तान में।
کہ اس وقت جو پاکستان کا مین میڈیا ہے اس پر تو سب پابندیاں ہیں، لیکن جہاں بس نہیں چلتا وہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ جو مین ہمارا میڈیا ہے اس کے اندر اس کی ساکھ بہت تیزی سے خراب ہوئی ہے۔ اس میں سچ نہیں لکھا جاتا، اس میں سچ نہیں بولا جاتا، اور